Good morning, students. Today we'll be doing this chapter 5th of your Moments book, The Happy Prince. I'll be doing the reading as well as the explanation for you people. All of you, please listen to it very carefully. Now, the name of a chapter is The Happy Prince. Now, what is this story about? This story is about the Happy Prince. Now, what is this Happy Prince? There is a statue of the Happy Prince. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? तो ये जो स्टोरी है ये एक हैप्पी प्रिंस के स्टेचू के बारे में जो एकदम सोने से हीरे मोती से लदा पड़ा है। और ऐसा क्या रीज़न होता है कि वो इन सब से छुटकारा पाना चाहता है, इन सब से वो दूर होना चाहता है। दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द स्टोरी। अ वेरी हार्ट टचिंग एंड अ वेरी गुड स्टोरी दिस इज़। Now the story starts here. High above the city, on a tall column, stood a statue of Happy Prince. He was glided all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. तो शहर के अंदर बहुत ऊंचे पे एक जो स्टैचू बनाया गया था जो हैप्पी प्रिंस का था, जो उसकी ड्रेसेस थी, जो उसने ड्रेस पहन रखी थी वो एकदम गोल्ड की डेलिकेट लीव्स से बनाई गई थी। उसकी आंखों के अंदर जो है सफ़ायर लगाए गए थे और एक जो उसकी सोड है उसके अंदर जो रूबी है, रेड रूबी जो ग्लो करता था। एंड वी ऑल नो सफ़ायर, रूबीज़ एंड गोल्ड ऑफ कोर्स दे आर सो एक्सपेंसिव एंड सो प्रेशियस। डायमंड्स एंड गोल्ड एवरीथिंग दे आर सो एक्सपेंसिव एक्चुअली। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. तो एक रात को वहाँ पे एक स्वेलो क्या है, एक छोटा बर्ड है। एक बर्ड जो है वो वहाँ से उड़ा है। उसके जो फ्रेंड्स हैं वो इजिप्ट जा चुके हैं 6 हफ्ते पहले। उसने पहले तो डिसाइड किया था कि वो नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद में ही वांटेड टू जॉइन हिज फ्रेंड्स, सो इवन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट. All day long he flew, and night time he arrived the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. अब वो पूरा दिन वो उड़ा और उसके बाद में शाम को जब वो वहाँ पहुँचा है तो उसको लगा कि अब रात हो गई है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। और वो देखने लगा है कि मुझे कहाँ पर भाई मैं आसरा ढूंढूँ। Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. तो उसको वो स्टैचू दिखा और उसको लगा कि बहुत ऊंचाई पे जगह है, मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। तो वो जो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के बीच, जो पैरों के बीच में जो जगह थी, वहाँ पर वो अपनी जगह बनाता है और वहाँ पे सोने की तैयारी करता है। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. अब जैसे ही वो वहाँ पर सोने वाला था और बहुत प्राउड फील कर रहा था कि आज उसके लिए गोल्ड का बेडरूम है, और जैसे ही वो वहाँ पे नींद लेने वाला था वो क्या देखता है, उसके ऊपर एक बूंद आके गिरती है। वो देखता है आसमान एकदम साफ था, एक भी बादल नहीं था, तो बारिश हो नहीं रही, तो ये पानी कहाँ से आया? इतनी ऊंचाई पे ऐसा तो हो नहीं सकता किसी ने पानी फेंका होगा। तो ही वॉज एस्टोनिश्ड कि ये पानी कहाँ से आया। देन अनदर ड्रॉप फेल, और इतने में एक और जो बूंद है उसके ऊपर आके गिरती है। What is the use of a statue if it cannot help the rain off? He said. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. What did he see? The eyes of Happy Prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. ठीक है, और अब उसको गुस्सा आ गया कि ये एक ऐसा स्टैचू है जो मुझे बारिश से ही नहीं बचा सक रहा, मेरे पास बारिश की बूंदें आ रही हैं। तो उसको दूर के एक चिमनी दिख रही, तो उसको लगा कि मुझे उस चिमनी में जाके जो है शेल्टर को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अचानक क्या होता है, जैसे ही वो उड़ने वाला होता है तीसरी बूंद भी उसके ऊपर आके गिर जाती है। और अब वो क्या कर रहा है, वो ऊपर उठ के देख रहा है, तो क्या देख रहा है कि जो हैप्पी प्रिंस की आंखें हैं वो आंसुओं से भरी पड़ी है, और उसके जो गोल्डन चीक्स है उनमें से जो आंसू की धारा है वो बह रही है। और वो इतना खूबसूरत लग रहा था उसका जो इनोसेंट फेस है गोल्डन प्रिंस का मूनलाइट के अंदर, कि स्वेलो को उसके ऊपर दया आ गई। हु आर यू, ही सेड। अब स्वेलो से पूछ रहा है कि तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे हो।
तो कह रहा आई एम द हैप्पी प्रिंस यू हैव क्वाइट ड्रेच में। अब स्वेलो उससे नाराज़ हो रहा है कि तुमने मुझे एकदम गीला कर दिया। अब वो क्या कह रहा है कि वेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर्ड द स्टैचू आई डिड नॉट नो वट टेयर्स वर एंड आई लिव्ड इन द पैलेस where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died, and now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अब जो हैप्पी प्रिंस बोल रहा है कि जब मैं ज़िंदा था तब मैं बहुत खुश था, मैं हैप्पी था, क्योंकि मैंने कभी भी मिजरीज़ नहीं देखी। मैं पैलेस में रहता था, सब कुछ बहुत खुश होता था, है ना, मेरे लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा रहता था, क्योंकि मैं पैलेस से बाहर कभी मैंने झांकने की कोशिश ही नहीं करी और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, इसलिए मैं खुश रहता था। तो सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। और अब जब मैं मर गया हूँ तब इन्होंने मेरा स्टैचू जो है इतना ऊपर इन्होंने लगा दिया, और अब जो है मुझे मेरे शहर की जो अगलीनेस है ना, जो लोगों के जो दुर्दशा है वो मुझे अब दिख रही है। और अब जो मेरा हार्ट है, जब मैं ह्यूमन हार्ट था दैट टाइम आई वॉज हैप्पी, क्योंकि उस टाइम मुझे वो अगलीनेस नहीं दिख रही थी। नाउ आई हैव अ हार्ट ऑफ लेड, और लेकिन अब मुझे जो अगलीनेस दिख रही है, और लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट हेल्प बट वीप, है ना, मैं सिर्फ रो ही सकता हूँ, आंसू बहा सकता हूँ। What is it not solid gold, said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब वो सोच रहे कि पूरा प्रिंस जो है यहाँ पर गोल्ड का है और इसका हार्ट लेड का डाल दिया अंदर, हेड भी गोल्ड, हार्ट भी जो है गोल्ड का होना चाहिए था, लेकिन वो पर्सनल रिमार्क्स नहीं, तो उसने राजा से ऐसा पूछना ठीक नहीं समझा। Far away, continued the statue in low musical voice, far away in the little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flowers on the satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear for the next court balls. In a bed, in a corner of the room, her little boy is lying ill. He has fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened, so this pedestal, and I cannot move. अब जो हैप्पी प्रिंस है वो बोल रहा है कि मुझे इस ऊंचाई से दिख रहा है कि दूर एक छोटे से खिड़की से मुझे एक औरत दिख रही है, जो कि जिसके हाथ जो है बहुत दुबली पतली सी है, चेहरा उसका है ना, आईज ग्लूमी है, उसके हाथ जो हैं एकदम से कट गए हैं। किस वजह से कट गए हैं? सुई की वजह से, क्योंकि वो क्या करती है, वो कढ़ाई करती है, वो बड़े बड़े सेटिन गाउन्स पे एम्ब्रॉयडरी का काम करती है ना। वो क्वींस की मेड्स के लिए कोई उनका फंक्शन होने वाला है, उसके लिए वो तैयारी कर रही है, और पास में एक बेड पड़ा है जिसके ऊपर उसका बीमार बेटा पड़ा है जो कि फ़ीवर से तप रहा है, और वो अपनी मम्मी से ऑरेंज चाहता है, लेकिन उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए सिवाय नदी के पानी के। और मुझे उस पर बहुत दया आ रही है, तो तुम मेरा एक काम करोगे क्या? तुम मेरी जो सोड है उसके अंदर से ये जो गोल्डन रूबी है इसको निकाल के और उसको दे के आ जाओ प्लीज़, क्योंकि मेरे जो पैर है वो यहाँ पे बंधे हुए हैं। आई कैन नॉट मूव, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता हूँ। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. अब वो कह रहा है कि मेरे को तो इजिप्ट जाना है, मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ पे मेरे वेट कर रहे हैं ना, वो उधर ऊपर नीचे उड़ रहे हैं और लोटस से बात कर रहे हैं। और थोड़े दिनों में क्या होता है, हर भी नेशन में ना विंटर स्लीप के लिए चले जाता है कि दे ऑल विल स्लीप देन। The prince asked the swallow to stay with him for one night, be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. अब वो कह रहा है एक रात के लिए मुझसे मेरे पास रुक जाओ, जो बच्चा है वो प्यासा है और उसकी माँ जो है इतनी बेचारी है। I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. अब swallow क्या कह रहा है, मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है वैसे भी, और मुझे तो इजिप्ट जाना है। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. अब उसने डिसाइड किया कि वो एक रात वहाँ रह लेगा, क्योंकि उसे दया आ गई थी प्रिंस के ऊपर। हालांकि बहुत ठंड थी उसके लिए, फिर भी बिकॉज ऑफ हिज गुड हार्ट ही डिसाइडेड टू स्टे देयर टू हेल्प द हैप्पी प्रिंस एंड बी हिज messenger. Thank you, little swallow, said the prince. The swallow picked out of a ruby from the prince's sword and flew away with it in its beak over the roofs of the town. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculpted. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out in the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time by the state
For the state ball, she said, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the sorry, but the seamstresses are so lazy. ठीक है, अब वो उड़ के उस घर की तरफ जा रहा है, तो बीच में वो चर्च पास कर रहा है, वो पैलेस पास कर रहा है, और वहाँ पे अलग अलग उसको कहीं पे डांसिंग की आवाज़ आ रही है, कहीं पे जो मेडन्स है वो अपने लवर को कह रही है कि मेरी ड्रेस हो जाएगी, और वो मतलब उस लेडी के लिए कह रही है कि बहुत लेजी होती है, पता नहीं मेरी ड्रेस जो है बॉल डे तक वो रेडी कर भी पाएगी या नहीं करेगी. He passed over the river. He saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor man's house and looked in. The boy was tossing feverishly in his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. ठीक है, उसने रिवर क्रॉस करी और अल्टीमेटली वो वहाँ पहुँच गया. कहाँ पहुँच गया? उस विंडो से अंदर. जो माँ है वो थक चुकी थी, उसको बैठे बैठे वहाँ पे नींद आ गई थी. जो बेटा है वो इधर उधर करवटें बदल रहा था, बहुत बेचैन हो रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको बहुत गर्मी लग रही थी बिकॉज ऑफ फीवर. तो इसने जो है स्वेलो ने जो रूबी है वो उस माँ के पास में रखा धीरे से, और उसके थोड़ी देर जो अपने पंखों को फ्लैटर किया उस बीमार लड़के के ऊपर, है ना, ताकि उसको थोड़ी ठंडक मिल सके. और जब उसको थोड़ी सी ठंडक मिली तो ही फील्ड बेटर, और उसने ये फील किया कि शायद मेरी तबीयत जो ठीक हो रही है, और उसको बहुत अच्छी नींद आ गई. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. वो कह रहा है कि जो मैंने किया है वो पागलपंती है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे बहुत ठंड है, लेकिन अभी जो एक अच्छा काम मैंने किया है वो करने के बाद में मुझे एक वार्मथ मिल रही है ना. Whenever we do good, हमारी जो इनर सोल्स है, they give us a warmth and a feeling of pleasure from inside we get. That is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. अब जो ये बात सुन के जो स्वेलो है वो सोचने लग जाता है, और सोच के हमेशा जब भी वो कुछ सोचता है उसको हमेशा नींद आ जाती है, तो वो सोचते सोचते एकदम गहरी नींद में सो जाता है. When the day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. ठीक है, तो अगला दिन सुबह वो नहाता है और बहुत सपने देख रहा होता है कि अब मैं इजिप्ट जाऊंगा और वहाँ जो भी करेगा वो, और पूरा दिन, और इजिप्ट के लिए एक्चुअली में वो रात को फ्लाई करेगा, तो पूरा दिन वो पूरे शहर के ऊंचे ऊंचे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर बैठता है. और जैसे ही जो चांद है वो उगता है, वो उस टाइम हैप्पी प्रिंस को गुड बाय करने के लिए जाता है, और हैप्पी प्रिंस को बोल रहा है कि कोई इजिप्ट में तुम्हारा काम है तो बता दो, मैं आज रात को इजिप्ट जा रहा हूँ. अब प्रिंस क्या कह रहा है? स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. अब वो एक रात और रुकने के लिए उसको कह रहा है. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर्ड द स्वेलो. अब जो स्वेलो वो कह रहा है कि मेरा इजिप्ट में मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as pomegranate, and he has a large and dreamy eyes. He is trying to finish his play for the director of the theatre, but it is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which were brought out of India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to a jeweler and buy firewood and finish his play, and he said. अब स्वेलो बोल रहा है तुम एक रात और मेरे साथ रह लो. मुझे दूर एक लड़का दिख रहा है जो कि फायर प्लेस के पास में बैठा है, लेकिन उसकी फायर प्लेस में बिल्कुल भी आग नहीं, वो ठंड से कांप रहा है. उसके होंठ जो एकदम लाल हो चुके हैं, एकदम अनार की जगह तरह. और उसको थिएटर के डायरेक्टर ने एक प्ले लिखने के लिए कहा है. अगर उसने प्ले नहीं लिखा तो शायद उसको नौकरी भी नहीं मिले, और वो प्ले लिख सकता है. उसकी आँखों के अंदर चमक है, लेकिन ठंड की वजह से और भूख की वजह से वो नहीं लिख पा रहा है. तुम उसकी हेल्प करो. अब स्वेलो का अच्छा दिल था, है ना, ही वॉज बर्ड ऑफ गुड हार्ट. वो कह रहा है तो मैं एक और रूबी दे के आऊँ उसको. तो कह रहा है मेरे पास रूबी तो नहीं है,
लेकिन मेरी आंखों के अंदर जो सफ़ायर है बहुत साल पहले बाहर से विदेश से लाए गए, बहुत कीमती जो है सफ़ायर्स है। तो तुम एक काम करो, तुम मेरी आंख में से एक सफ़ायर निकाल लो। ये जो आदमी है ये उसको ज्वेलर को बेच के उससे फायरवुड ख़रीद सकेगा और वार्मथ के अंदर वो अच्छे से अपना जो प्ले है वो कंप्लीट कर सकेगा और अपने जो डायरेक्टर को है वो दे सकेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट। अब जो स्वेलो है वो मना कर रहा है कि प्रिंस मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी आंख से मैं कैसे निकाल लूँ सफ़ायर, तुम्हारी आइज़ थोड़ी छीन सकता हूँ मैं। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। वो कह रहा है तुमको वैसे ही करना पड़ेगा जैसा मैं कमांड कर रहा हूँ। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. Through this he darted and he came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. ठीक है, अब जो उसकी आंख से वो सफ़ायर निकाल के, क्योंकि राजा उसको कमांड करता है, वो जाता है और उसको अंदर जाने में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि जो रूफ़ होती है, जो छत होती है, उसके अंदर एक छेद होता है, उसके अंदर से वो अंदर चला जाता है। और जो लड़का है वो अपने हाथों के बीच में अपना सिर डाल के बैठा होता है क्योंकि बहुत ठंड होती है, इसलिए उसको जो आवाज़ नहीं आती है वहाँ पे उसकी फ्लटरिंग की। और जब वो अपना सिर ऊपर करता है तो उसको वो वॉयलेट्स जो सूखे से पड़े होते हैं उसके अंदर जो उसे वो सफ़ायर मिलता है, एंड ऑफकोर्स ही इज़ वेरी हैप्पी देन। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. और उसको लगा कि उसका कोई एडमायरर है जिसने उसको ये हेल्प करी और उसको लगा कि शायद मेरा काम जो है लोगों को पसंद आने लगा, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हिज वर्क. The next day the swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of large vessels and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow. But nobody minded, and when the moon rose he flew back to the happy prince. है ना, अगले दिन वापस वो पूरा दिन इधर उधर कभी शिप्स के मास्ट पर बैठ रहा है, सेलर्स को देख रहा है, ऐसा सब कुछ कर रहा है, एंड शाम को वो वापस इजिप्ट निकलने के लिए, जाने से पहले हैप्पी प्रिंस से मिलने के लिए जाता है. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. और उसको बोल रहा है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ. इट इज़ स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. वो कह रहा है एक रात और रुक जाओ मेरे साथ. It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt the sun is warm and green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stockings and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her. Her father will not beat her. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck your eye. You would be quite blind then. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. ठीक है, अब वापस क्या हो रहा है, उसको जो है जो लिटिल स्वेलो वो बोल रहा है कि मैं जैसा कमांड कर रहा हूँ तुमको वैसा ही करना पड़ेगा. और एक लड़की है जो कि माचिस बेचने का काम करती है, उसके फादर उससे पैसे मांगते हैं माचिस बेच के. आज जो उसकी माचिस है वो गटर में गिर गई है और वो वहाँ पर खड़े होकर रो रही है क्योंकि उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है. घर जाके उसकी पिटाई होगी. उसके पास ना ही तो गर्म कपड़े हैं, ना ही चप्पल है, ना ही जूते हैं, और सिर पे बांधने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है. तो तुम मेरी आंख से एक और हीरा निकाल के उसको देकर आ जाओ. अब जो स्वेलो है वो मना कर रहा है कि मैं तुम्हारी आंख से हीरे कैसे निकालूँ. तो बोल रहा है कि तुमको जैसा मैं कमांड कर रहा हूँ तुमको वैसा ही करना पड़ेगा. तो फिर जो सफ़ायर है वो क्या कर रहा है, स्वेलो. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swept past the match girl and slipped the jewels into the palm of her hand. अब उसने वैसे ही करा, सफ़ायर निकाला और जाके उस लड़की के हाथ में दे दिया. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. ठीक है, अब जो लड़की है वो उस सफ़ायर को लेके, हालांकि उसको नहीं पता था कि हाउ प्रेशियस इट इज़, लेकिन वो बहुत खुश होती है और वो घबरा के घर चली जाती है. अब जो लिटिल स्वेलो वो प्रिंस के पास आता है और वो उसको बोलता है कि अब जो है तुम अंधे हो चुके हो, तुम देख नहीं सकते हो, तो अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ. मैं हमेशा हमेशा के लिए जो है तुम्हारे पास ही रहूँगा. अब मैं हमेशा यहीं पर रहूँगा तुम्हारे साथ. नो लिटिल स्वेलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. अब वो बोल रहा है कि तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए, क्योंकि पहले बीच में एक जगह जो स्वेलो ने प्रिंस को कहा है कि यहाँ पे बहुत ठंड है, बर्फ़ गिरने वाली है. इजिप्ट में अभी भी गर्मी पड़ रही है और स्वेलोज जो है बहुत ज़्यादा जो ठंड है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. तो ऑफकोर्स ही विल डाई, विल बी स्टेइंग बैक देयर विद द प्रिंस.
नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट्स। लेकिन जो स्वेलो है वो ज़िद्दी था, उसने कहा नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और उसके पैरों में सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. Dear swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. अब जो स्वेलो है वो दिन रात वहाँ रहता था, और वो जहाँ जहाँ पे कहीं उड़ के गया था वो अपनी स्टोरीज़ जो है राजा के साथ शेयर करता था। अब जो प्रिंस है वो उसको बोलता था कि मुझे इतना पता है कि तुम मुझे बहुत सारी मिस्ट्रियस बातें बताते हो, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री है मिजरी। तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे शहर के ऊपर जो है फ्लाई करो, और मेरे जो भी लोग जो परेशानी के अंदर हैं तो मुझे आके उनकी डिटेल्स जो है वो बताओ कि कौन किस परेशानी को फेस कर रहा है। So the swallow flew over the great city and saw a rich making merry in the beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. He flew into the dark lanes, saw white faces of starving children looking out listlessly at the back streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying at each other's arms and trying to keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. Then he flew back and told the prince what he had seen. अब क्या है, वो पूरे शहर के ऊपर चक्कर लगाता है। जो अमीर है वो अपने घरों में मज़े कर रहे होता है, भिखारी उनके गेट के ऊपर भीख मांग रहे होते हैं, है ना। कहीं पे लोग खुश हैं, कहीं पे लोग उदास हैं, कहीं पे एक वक्त का खाना भी नहीं है, कहीं पे लोग आराम से खा रहे हैं। दो लड़कों को देख रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे को हक किया होता है ताकि वो एक दूसरे को गर्म रख सके एक किसी रूफ़ के नीचे, लेकिन वहाँ से भी उनको जो वॉचमैन भगा देता है और वो बारिश के अंदर आ जाते हैं। अब वो ये सब देखकर जो वापस है प्रिंस के पास आता है। आई एम कवर्ड विथ देन ही फ्लू बैक टू दैन टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन। अब वो घर आके और सारा कुछ प्रिंस को बताता उसने क्या क्या देखा, क्या क्या था। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी। अब वो कह रहा है कि मैं मेरी पूरी जो ड्रेस है वो गोल्ड की है, हमें स्टार्टिंग में बता दिया गया है। तो बोल रहा है कि तुम्हें ना एक एक लीफ सबको दिया हो जिन जिनको ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो ज़िंदा लोग होते हैं उनको लगता है कि सोना अगर उनको मिल गया तो उनको सब कुछ मिल गया। सोना इज़ मोर देन इनफ फॉर देम। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. अब डेली वो एक पत्ता ले जाके किसी बच्चे को, किसी गरीब को दे देता। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस है अब उसका जो सारा सोना, सारे सफ़ाए, सारे डायमंड्स जो सब वो निकल गए थे, और अब वो एकदम डल बदसूरत से जैसा लग रहा था। Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys scarlet caps and skated on the ice. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब जो है बर्फ़ गिर गई, सब कुछ एकदम सिल्वर जैसा हो गया, फिर फ्रॉस्ट आने लग गई। सब लोग जो है बहुत ऊनी कपड़ों के अंदर बाहर निकलते थे, फर वाले कोट्स वगैरह पहनकर। जो ठंड है वो बढ़ रही थी। अब जो लेकिन जो स्वेलो था वो सब कुछ फेस करने के लिए तैयार था, लेकिन वो हैप्पी प्रिंस को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो बेकर जब नहीं देख रहा होता तब उसकी दुकान से थोड़ा बहुत जो वो कचरा फेंकता था उससे अपना पेट भरता, और 24 घंटे अपने विंग्स को फ्लैप करता रहता ताकि वो उसे गर्म रख सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन अंत में उसको पता था कि वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। गुड बाय डियर प्रिंस, ही ममर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। अब वो लास्ट उसको पता था कि अब उसकी डेथ नियर है। अब वो और ज़्यादा जो ठंड है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो प्रिंस के पास जा रहा है और वो बोल रहा है कि क्या मैं एक बार लास्ट टाइम तुम्हारा जो हाथ है उसको किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. अब जो हैप्पी प्रिंस है बोल रहे मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम इजिप्ट जा रहे हो, तुमने मेरे साथ बहुत टाइम बिताया है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे हाथ पे नहीं मेरे लिप्स पे किस करो, बिकॉज आई लव यू। It is not going to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is brother of sleep. Is it not? Is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. ठीक है। अब जो और वो बोल रहा है कि अब तो मैं डेथ के पास जा रहा हूँ, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, और उसके लिप्स पे किस करके उसके पैरों के अंदर ही वो मर गया और गिर गया।
At that moment, a curious crack sound inside the statue, as if something had broken. The fact is that the little heart had snapped right in two. It certainly was a dreadful hard frost. अब क्या है, अचानक उस प्रिंस के अंदर से आवाज़ आई और उसका जो लेड का हार्ट था वो दो टुकड़ों के अंदर गिर गया था. ठंड भी बहुत थी. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company of the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor as they went up to look at it. ठीक है. अब अगले दिन सुबह जो मेयर काउंसलर है वो वहाँ से जा रहा है और वो बोल रहा है कि कितने गंदा लग रहा है ये, कितना गंदा सा लग रहा है प्रिंस. और ऑफ कोर्स जो उसके काउंसलर्स थे वो हमेशा उसके हाँ में हाँ मिलाते थे, बोलते थे कि हाँ बहुत गंदा लग रहा है, और उसके पास में जाते हैं. The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he has no golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. वो बोल रहा है कि सब कुछ तो चला गया, अब तो एकदम भिखारी के बराबर हो गया है. Little better than a beggar, said the town councillors. And here, actually, a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. So they pulled down the statue of the happy prince, as he is no longer beautiful and no longer useful, said the art professor at the university. तो उन्होंने कहा कि एक तो प्रोक्लेमेशन कि किसी भी चिड़िया को यहाँ पे मरना अलाउड नहीं है. मतलब ह्यूमन नेचर देखो कैसी होती है. और उस स्टैचू को वहाँ से हटा दिया जाने का आदेश दिया गया, क्योंकि अब वो ना सुंदर था ना ही किसी काम का था. So they pulled down the statue of the happy prince, as he is no longer beautiful and no longer useful, said the art professor. Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen of the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So he threw it on the dust heap where the dead swallow was also lying. अब जब उसको उस स्टैचू को आग के अंदर पिघलाया जा रहा था तो उसके अंदर से क्या निकला? टूटा हुआ लेड का हार्ट. अब जो मिस्त्री था जो वहाँ पे काम कर रहा था वो बोल रहा है कि ये लेड तो इसमें नहीं पिघलेगी, तो इसको फेंक दिया जाता है. तो उसको वो उसी कचरे के ढेर पर फेंकते हैं जहाँ पर कि उन्होंने उस मरी हुई स्वेलो को फेंका था. नाउ ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स. अब ईश्वर जो है वो अपने एक एंजल को, एक फरिश्ते को कह रहे हैं कि शहर की सबसे दो खास चीज़ें जो है तुम मेरे लिए लेके आओ, जो सबसे प्रेशियस है, सबसे बेशकीमती चीज़ें हैं. एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लिटिल हार्ट एंड द डेड बर्ड. और एंजल क्या लेके गया? वो टूटा हुआ लेड का हार्ट और वो मरी हुई स्वेलो चिड़िया. यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड, for in my garden of paradise the little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. अब वो कह रहा है कि अब जो है तुमने जो तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो सबसे बेस्ट था. अब ऑफकोर्स हेवन के अंदर जो ये स्वेलो ये हमेशा अपने गाने गाएगी, और जो हैप्पी प्रिंस है वो मुझे प्रेज करेगा मेरी सिटी ऑफ गोल्ड के अंदर. दिस इज़ स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर विल्ड. I hope all of you understood this chapter, a very nice and very interesting chapter, that how we all are after gold, sapphires, diamonds, after money, and once a man is dead, everything is useless for him. And like the happy prince, he could not help people when he was living, but he decided to help them after he was dead, which is not actually possible for commoners. So it is a satire on the present lifestyle, है ना. So many examples they have given, like rich are they happy in their homes, poor they are finding it hard to have a daily bread also. So that's a very good story. I hope all of you enjoyed the story, and in our next class we'll be doing the question and answers of this chapter.